Good morning, students. I'm Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acid of class 12th. It's lecture second. Students, if you will have any query beta, you can mail me at my email ID beta, that is eChemistryOnline@gmail.com, and my WhatsApp number is 94186054442. And today's subtopics are structure of the carbonyl group, then we'll discuss the preparation of aldehydes and ketones. So students, let's start. Now, another oxidizing agent, that is your active manganese dioxide बेटा ये जो आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड है दैट ऑक्सीडाइज अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स। और किस सॉल्वेंट में बेटा? इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि आपका CH2Cl2 है, इज दे क्लियर? देन योर CCl4 है बेटा, दैट इज योर कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट इन द नेम ऑफ पायरीन बेटा. That will give you the corresponding alpha beta unsaturated aldehydes and ketones. Is that clear? Means अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ये क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडाइज करेंगे इन इनर्ट सॉल्वेंट, दैट इज CCl4 as I've told you, or you can say CH2Cl2. Is that clear? So they will give you the corresponding alpha beta unsaturated aldehydes or ketones. For example, this was somewhat allylic alcohol beta. Now this upon oxidation in the presence of this oxidizing agent, that is MnO2 beta, in this solvent beta, that will give us aldehyde beta, that is alpha beta unsaturated aldehyde. Alpha, how alpha beta? Next to this aldehyde group beta, this carbon is alpha carbon and this beta, और alpha और beta के बीच में आपका क्या है? Double bond है beta. Is that clear? That's why it is said to be alpha beta unsaturated aldehyde, and that is nothing but it's acrolein. Now next beta, oxidation with the aluminium tertiary butoxide, that is open your oxidation. Students, in this oxidation जो आपके secondary alcohols हैं बेटा, whether they are your saturated or unsaturated, they can be oxidized to the ketones without being further oxidized to the carboxylic acids, or oxidation occurring at the double bond. Means आपके double bond भी unaffected रहेंगे, they will not be oxidized बेटा. Is that clear? और saturated कौन से रहते हैं बेटा? जिनमें आपका single bond ही है. Is that clear? Double bond और triple bond is not there, pi bonds are not there, so they are your saturated बेटा. और जिनमें हैं they are your unsaturated. For example beta, this is some secondary alcohol and that is a saturated secondary alcohol beta. Is that clear? So when this is oxidized, is that clear? And now this is acetone beta, CH3 C11OCH3 beta. This is some ketone, that is acetone here, or propanone is its IUPAC name beta. That is upon oxidation in the presence of this tertiary aluminium tertiary butoxide beta, ये क्या देगा हमें? That is going to give you this ketone. Is that clear? And your this secondary alcohol we are getting further. Is that clear? But here what is happening? So here this ketone is getting formed by this open your oxidation beta, और open your oxidation कौन करता है बेटा? Aluminium tertiary butoxide बेटा. ये थोड़ा याद करने पड़ेंगे बेटा आपके जो भी catalysts हैं, जो भी oxidizing agents हैं, you have to mug up beta. Now next beta, by the catalytic dehydrogenation of the alcohols. Catalytic means in the presence of catalysts. Dehydrogenation means loss of hydrogen beta. Is that clear? और किसका? Alcohols का. Let's say we are having this RCH2OH beta. Is that clear? That is going to give you this RCHO. और कैस कब बेटा? जब हम इस अल्कोहल को पास कर रहे हैं ओवर द हीटेड कॉपर, मेटल कॉपर बेटा, एट योर दिस टेम्परेचर, दैट इज 573 केल्विन. और वो क्या दे रहा है हमें? दैट इज गिविंग अस दिस एल्डिहाइड. सो दिस इज catalytic dehydrogenation. Dehydrogenation means it is losing this
हाइड्रोजन बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन योर दिस C and O बेटा, दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू गिव अस RCHO, दैट इज एल्डिहाइड. सो दिस कीटोन बेटा, अगेन यहां भी इसको भी हम जब पास करेंगे ओवर हीटेड कॉपर बेटा एट योर 573 केल्विन, दैट विल गिव अस कीटोन बेटा और प्लस हाइड्रोजन. सो दिस इज अगेन योर डिहाइड्रोजनेशन. और कौन कर रहा है? ये कैटालिस्ट बेटा, और दैट इज हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम हियर, वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन बेटा एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, then that's why this C double bond O is getting formed over here. Hope students this is clear. Now students, we can prepare the aldehydes or ketones from the carboxylic acids as well. और ये कैसे बेटा? या तो हम ड्राई डिस्टिलेशन करें बेटा कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स की, या फिर पासिंग द वेपर्स ऑफ द फैटी एसिड्स ओवर द मैंगनस ऑक्साइड, दैट इज MnO. Is they clear? At your 573 Kelvin. So beta, let's take the first case by the dry distillation of calcium salts of fatty acids. So beta, let's say this is calcium formate, HCOO, CaHCOO. Is they clear? That is a calcium formate over here. जब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन इसकी कर रहे हैं हम, इज दे क्लियर? व्हाट इट इज गोइंग टू गिव अस? दैट इज गिविंग यू दिस मिथेनॉल, इज दे क्लियर? प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ यू नो जस्ट सी CaCO3. CaCO3 यहां से जाएगा बेटा लाइक दिस, and it will give us HCHO, that is a methanol is it is going to give us. Now beta, this is a calcium acetate. Is that clear? जब हम इसको कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं बेटा, तो ये हमें क्या देगा? हमें दैट विल गिव अपॉन ड्राई डिस्टिलेशन हमें क्या देगा बेटा? दैट विल गिव अस CH3CHO, दैट इज ऑफ इथेनॉल इट इज गिविंग अस. सो यू नो दिस इज डिस्प्लेस्ड हियर बेटा. नाउ सिंस दिस इज रॉन्ग, is that clear? That is going to give us CH3C11OH beta. Is that clear? And these are two, क्योंकि यहां CH3CHO beta and CH3CHO, और यहां से CaCO3 will get as the byproduct. I think that must be there beta. So that will give us plus CaCO3. So CaCO3 that is calcium carbonate will be the byproduct over here. Now beta, calcium acetate here, that will upon dry distillation will give us this acetone beta, that is a propanone rather, or calcium carbonate will be your byproduct. Next beta, by passing the vapors of the fatty acids over the manganese oxide at 573 Kelvin. This is beta methanoic acid. When the vapors of the methanoic acid they are passed over the manganese oxide beta, that will give us this methanol. और बाई प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा बेटा आपका? दैट विल गिव अस CO2, दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर, दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी बाय प्रोडक्ट एंड देन वाटर विल बी फॉर्म्ड. सो सिमिलरली बेटा, दिस एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड विद योर दिस मैथेनोइक एसिड, और यू कैन से फॉर्मिक एसिड बेटा, दैट विल गिव अस दिस CH3CHO, दैट इज ऑफ इथेनॉल इट विल गिव अस. Is that clear? And carbon dioxide will be a byproduct and the water will be the byproduct. Now, next is the CH3COH beta, that is ethanoic acid. When we are going to treat it with this ethanoic acid, again that will give you this ketone beta, that is acetone over here, that is acetone, and again carbon dioxide and water will be a byproduct. So beta, ये भी यहाँ भी क्या था कि बेटा जब हमने इनके वेपर्स को हमने पास किया ओवर दिस मैंगनस ऑक्साइड बेटा एट 573 केल्विन पे, तो हमें क्या मिल रहा है बेटा? एसीटोन मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाय प्रोडक्ट हमें. नाउ सिंस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, पहला मेथड जो है बेटा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बेटा, दूसरा बेटा बाय द हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइंस, एंड देन बाय द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्किन्स बेटा, जो आपने +1 में भी ये रिएक्शन किया होगा. देन बाय the oxidation of alkenes with palladium chloride beta, that is your cupric chloride catalyst, and that is your Walker's process beta. So let's take the first case, that is your hydration of the alkynes. Hydration means beta alkynes का water के साथ reaction. Indirectly अगर मैं बात करूं,
हाइड्रेशन इज द रिएक्शन ऑफ द एल्काइंस विद द वाटर। सो बेटा एल्काइंस में जब हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करेंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बेटा एंड HgSO4, ये क्या देगा हमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देगा। लेट्स सी कैसे बेटा, ये हमें क्या देगा बेटा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देगा। लेट्स सी कैसे, लेट्स से दिस इथाइन बेटा, वाटर के साथ जब हमने इसको ट्रीट किया बेटा तो आपका H एक कार्बन के साथ जाएगा और आपका OH दूसरे कार्बन के साथ बेटा, तो मीन सिंपली और एडिशन ऑफ दिस वाटर इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इज दैट क्लियर। एंड वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, इज दैट क्लियर, दैट इज ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एट योर 333 केल्विन बेटा, और ये हमें क्या दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, मींस व्हाट इज हैपनिंग हियर, एडिशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, एडिशन हो रही है बेटा वाटर की कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। अब जब एडिशन हुई बेटा तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना क्या रह गया बेटा, आपका डबल बॉन्ड रह गया, एक कार्बन के साथ OH और दूसरे के साथ H चला गया बेटा। सो दिस इज गिविंग यू इनोल बेटा। नाउ बेटा दिस इनोलिक फॉर्म जो है दैट इज अनस्टेबल। नाउ ये इनोलिक फॉर्म हमें क्या देगा बेटा, दैट विल टॉटोमराइज, यू कैन से this enolic form, or you can say this vinyl alcohol as well as, is that clear? So this will give us CH3CH. now beta let's say this unsymmetrical alkane, is that clear? इसकी हमने हाइड्रेशन करनी है बेटा सेम डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 बेटा एट 333 केल्विन। ये हमें क्या देगा, अगेन उसी तरह बेटा OH एक कार्बन के साथ चला जाएगा और दूसरे के साथ आपका H जाएगा, लेकिन बेटा यहां थोड़ा ध्यान देना, दिस अनसिमेट्रिकल अल्काइन, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, मींस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस वी आर हैविंग डिफरेंट कार्बन एटम्स बेटा, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्काइन बेटा। नाउ जो इसका नेगेटिव पार्ट है बेटा, इट विल गिव यू दिस OH एंड H, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये देगा बेटा अपॉन आयनाइजेशन बेटा वाटर। तो नेगेटिव पार्ट जो उसका उस कार्बन के साथ जाएगा बेटा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, वो कहां है, इस कार्बन के साथ बेटा, इज दैट क्लियर। सो बेटा अगर ये OH नेगेटिव यहां जा रहा है तो दैट इज शिफ्टिंग टू हियर, तो H आपका कहां जाएगा, इस कार्बन के साथ, दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज वन ऑफ द इनोल फॉर्म बेटा, इज दैट क्लियर, और दैट इज अ prop 1-ene-2-ol, दैट इज IUPAC नेम बेटा। ये आपको पता ही होगा बेटा कि आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, इज दैट क्लियर। तो 2 पे आपका एल्कोहलिक ग्रुप है बेटा, इज दैट क्लियर। सो इट्स प्रॉप 3, वर्ड रूट आपका प्रॉप, देन प्राइमरी सफिक्स आपका इन बेटा, ई रिमूव कर देंगे और सेकंड पोजीशन पे आपका ओल है, सो दिस प्रॉप 1-ene-2-ol, इज दैट क्लियर। सो दैट इज अनस्टेबल बेटा, तो इट विल अंडरगो द टॉटोमराइजेशन, इज दैट क्लियर। टॉटोमराइजेशन में क्या रहेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां से यहां शिफ्ट करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट कर जाएंगे, इस कार्बन पे बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज होगा तो यहां से ये इस H पॉजिटिव को लूज करेगा तो यहां CH3 दे देगा, सो दैट इज गिविंग यू दिस CH3COCH3, दैट इज अ प्रोपेनोन और यू कैन से एसीटोन और दैट इज अ कीटोन बेटा। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। लेकिन बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, इज दैट क्लियर। Now beta next is by the hydroboration oxidation of the alkynes. बेटा ये जो रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप्स बेटा। फर्स्ट स्टेप में आपका हाइड्रोबोरेशन रहेगा, इज दैट क्लियर, और सेकंड स्टेप में आपकी ऑक्सीडेशन रहेगी बेटा। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है बेटा दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्काइंस। ऑलवेज रिमेंबर जो आपके सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइंस हैं बेटा दे गिव यू सिंगल कीटोन, इज दैट क्लियर। कौन सिंगल कीटोन देंगे बेटा, आपके सिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइंस बेटा, इज दैट क्लियर। मींस टर्मिनल पोजीशन पे आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो मींस दिस नॉन टर्मिनल सिमेट्रिकल एल्काइन बेटा, दैट इज 2-ब्यूटाइन, इज दैट क्लियर। ये इसको जब हम डाइबोरेन के साथ ट्रीट करेंगे बेटा तो ये क्या देगा हमें, in the presence of this tetrahydrofuran beta, that is what THF, is that clear? So this is going to give you this some
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोरेन बेटा। इज दैट क्लियर? सो ये कैसे देगा बेटा? लेट्स से ना बेटा, ये आपका जो BH, लेट्स से दिस इज ऑफ बोरेन से आपका दिस ऑफ B, लेट्स से दिस ऑफ B, लेट्स से बेटा दिस ऑफ B, दिस ऑफ H, दिस ऑफ H बेटा, दिस ऑफ बोरेन, लेट्स से बोरेन का ओके दिस ऑफ BH3 beta, because this is dimer of this BH3 beta. Now here this is electron deficient, so this is going to form the bond with this one, or this H will go as a hydride with this one beta. Is that clear? So this will give us CH3CH double bond. यहां डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड कहां चला गया बेटा? इस C और B के साथ चला गया, तो दिस इज ऑफ C, दिस ऑफ CH3 एंड ये वाला यहां चला गया बेटा, दिस ऑफ BH2. सो बेटा यहां जो आपके ये ब्यूटाइन के मॉलिक्यूल्स इसके साथ तब तक रिएक्ट करते जाएंगे जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस ना हो जाए। तो सेकंड में आपके 2 निकल गए बेटा, फिर थर्ड में आपका 3 निकल गए। सो मींस 3 मॉलिक्यूल जो है बेटा ब्यूटाइन के, दे विल रिएक्ट विद योर दिस B2H6 बेटा, दैट विल गिव यू दिस प्रोडक्ट बेटा। इस देख ले जब तक इसके सारे के साथ, दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज सम एल्किनाइल, ट्राई-एल्किनाइल बोरेन बेटा। इज दैट क्लियर? सो दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी बेटा, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी कौन करेगा बेटा? दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये क्या देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ दिस NaOH, दैट विल गिव यू दिस अल्कोहल बेटा। इज दैट क्लियर? सो CH3CH डबल बॉन्ड COH बेटा एंड CH3। इज दैट क्लियर? So we are getting your this product over here, that is we are getting this alcohol beta, लेकिन this alcohol is again unstable beta, that is a enolic form. Is that clear? This is enol, that is a unstable, that will undergo further tautomerization beta, और वो हमें क्या दे देगा बेटा? upon tautomerization some ketone देगा। ये हमें क्या दे देगा? हमें कोई कीटोन दे देगा, और वो कीटोन क्या है बेटा? that is a 2-butanone, that is a 2-butanone. So beta, it's very important reaction beta, that is by the hydrogenation oxidation of the alkynes beta. So we are getting here this ketone. So next is the unsymmetrical non-terminal alkynes beta. Now this is अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इस साइड बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है इसके साथ, एक कार्बन इस साइड है, 2 कार्बन इसके साथ है बेटा, तो दिस अनसिमेट्रिकल अल्काइन। इज दैट क्लियर? अनसिमेट्रिकल है और नॉन टर्मिनल है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है। टर्मिनल पोजीशन यहां कहां होती बेटा? इधर टर्मिनल पोजीशन होती है, ये टर्मिनल पोजीशन होती। इज दैट क्लियर? सो दिस नॉन टर्मिनल अनसिमेट्रिकल अल्काइन रादर। Is that clear? That is a 2-pentyne beta. In the first step, that is we have to treat it with beta this B2H6 in the presence of this tetrahydrofuran, and in the second step we have to oxidize it by this hydrogen peroxide beta in basic medium. और ये हमें क्या देगा? Product that will give the mixture of both possible ketones बेटा। 2 possible ketones बनेंगे, और वो कौन से होंगे बेटा? एक आपका CH3C11O, CH2CH3 है बेटा। Is that clear? और दूसरा आपका क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर आपका डबल बॉन्ड O रहेगा बेटा, कीटोनिक ग्रुप इस कार्बन के ऊपर रहेगा, दैट इज गिविंग यू दिस CH अगेन दैट इज शिफ्टेड ओवर हियर। ओके, सिंस दिस प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट बेटा, दिस इज CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2 and this is CH3. This will be formed here. Is that clear? Or now this product is the major product beta. Now out of these two, this product is the major product beta, क्योंकि आपके जो मिथाइल कीटोन्स हैं, they will be the major products beta. This is methyl ketone, that's why it is a major product, and that is a 3-pentanone, that will be this is 3-pentanone, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप आ रहा है बेटा, that's why it's a 3-pentanone बेटा, जबकि ये 2-pentanone है, then this 2-pentanone जो है that is a major product, क्योंकि अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइंस का जो आपका कीटोन बनेगा बेटा, तो मिथाइल कीटोन जो है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस मिथाइल कीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सो दैट इज अ 2-pentanone ओवर हियर।
होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. सो नेक्स्ट इज बाय रिडक्टिव ओजोनालिसिस ऑफ द एल्केन्स बेटा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा और बहुत ही इजी रिएक्शन है. जिसो सी डबल बॉन्ड सी बेटा. नाउ दिस इज सम एल्कीन लेट्स से. जब हम इसको ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे, इज दैट क्लियर, दैट विल गिव अस दिस ओजोनाइड बेटा. ये मैंने कार्बन के साथ जो 2 बॉन्ड्स हैं और 2 बॉन्ड्स हैं बेटा वो मैंने लिखे. एंड देन बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस जो आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी बेटा. नाउ सी दिस वन ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड विद दिस वन, देन दिस वन, देन दूसरी ऑक्सीजन बच गई बेटा, एटम्स बच गए बेटा, वो यहां बॉन्ड बना रहे हैं. तो दिस इज गिविंग यू दिस ओजोनाइड बेटा. दिस ओजोनाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, जो क्या दे देगा बेटा हाइड्रोलिसिस पे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट बेटा. ये क्या दे देगा हमें, दिस विल गिव अस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेटा. और जो ब्रेकिंग होगी इस ओजोनाइड की वो इस तरह होगी बेटा. तो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ यहां बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऑक्सीजन के साथ ये क्या दे देगा बेटा H2O2. और ये जिंक की प्रेजेंस में हो रहा तो बाय प्रोडक्ट आपका बेटा यहां जिंक ऑक्साइड बनेगा अल्टीमेटली. सो दिस इज द सम कीटोन और एल्डिहाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर डिपेंडिंग अपॉन कि ये कौन सी एल्कीन है बेटा. सो दिस वाज सम कार्बोनाइल कंपाउंड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होंगे बेटा, आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और डिपेंडिंग अपॉन दिस एल्कीन बेटा कि ये एल्कीन कौन सी है, यही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा एल्डिहाइड होगा या कौन सा कीटोन होगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ रिडक्टिव ओजोनालिसिस ऑफ द एल्कीन. नाउ depending upon the alkene beta, different aldehydes or ketones are formed. Is that clear? So let's take the example beta. Again this is some alkene is there, ozone के साथ इसने ozonide दिया बेटा. Addition of ozone, addition of the ozone is taking place across carbon carbon double bond here beta, and that is giving you this ozonide. और ozonide क्या करेगा बेटा, upon hydrolysis in the presence of this zinc dust is giving you this aldehyde or ketone. डिपेंडिंग अपॉन कि एल्कीन कौन सी है. नाउ लेट्स टेक सम एल्कीन ओवर हियर. लेट्स से दिस इज योर CH3 बेटा, दिस इज CH3 हियर, दिस इज CH3 एंड दिस इज H. तो दिस इज सम एल्कीन लेट्स से. इज दैट क्लियर? सो बेटा ये जो आपका ओजोन की यहां एडिशन हुई, दैट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन ऑक्सीजन. तो बेटा यहां ये वाला CH3 यहां होगा बेटा, this CH3 is here beta, and this CH3 is here beta, and this H is here. So breaking of the bond is taking place like this. So beta यहां जो आएगा C double bond O ये already is there. So this was CH3 here और CH3 over here beta. This was acetone is getting formed. और यहां क्या देगा ये CH3 यहां आ जाएगा बेटा और ये H. Is that clear? So this is giving you this ethanol. So beta this is giving you this propanone and ethanol. सो ये कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा बेटा, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस एल्कीन बेटा कि कौन सी एल्कीन है. और बेटा इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द एल्कीन. जैसे मान लो इफ यू आर गिवन दिस प्रोडक्ट, यू आर आस्क्ड की इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेटा एल्कीन कौन सी एल्कीन से ये आपके प्रोडक्ट बने. सो हाउ वी कैन डू दिस, बेटा you just write these products beta like just like this. This is CH3, this is CH3, right here this oxygen beta, and this is C double bond O is there, and then this is CH3 beta, then this is H. Remove this oxygen from here. इसको यहां से रिमूव किया और कार्बन कार्बन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ गया बेटा यहां. So I'm just writing directly over here. So this is going to give you this एल्कीन बेटा. सो मीन्स ये जो प्रोडक्ट बने ये इस एल्कीन से बने, एंड दैट इज दिस एल्कीन बेटा. होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट बेटा लेट्स से दिस इज अनदर केस बेटा. उसी तरह मैं इसको फिर से कर रहा हूं बेटा. ओजोनाइड इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? एंड दैट इज अपॉन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस जिंक डस्ट, बाय प्रोडक्ट आपका जिंक ऑक्साइड बेटा, एंड दिस इज सम एल्डिहाइड ऑफ कीटोन. नाउ लेट्स टेक अनदर एल्कीन ओवर हियर बेटा. लेट्स से CH3H बेटा, एंड देन H, देन योर H. Is that clear? This is simply a propene बेटा. तो ये क्या देगा आपको, let's say this is CH3H is there, यहां भी H बेटा, यहां भी H है यहां, और यहां क्या हो गया बेटा CH3 और यहां H. दिस इथेनॉल
is getting formed over here, and this so H and this so H. This is so methanol is getting formed. So बेटा आपकी कोई भी एल्कीन जो है ओजोन के साथ ट्रीट करके आपको कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन दे सकता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सम जिंक डस्ट. In the presence of some zinc dust. Hydrolysis in the presence of zinc dust. So next is reductive ozonolysis of alkenes बेटा. एक और एग्जांपल बेटा, इथाइन इज देयर ओजोन के साथ बेटा CHCl3 या CCl4 की प्रेजेंस में आपका 193 केल्विन पे जब हमने इसको बेटा ट्रीट किया, सो ये ओजोनाइड दे रहा है बेटा, और आपको ये सिंपली HCHO दे देगा बेटा. In the after hydrolysis in the presence of zinc dust, that will give you this methanol. Is that clear? Formaldehyde will be formed, or आपका zinc oxide will be your byproduct. Hope students this is clear. So beta, thank you. Have a nice day. Hope you have enjoyed. So subscribe my channel, like my channel, share my channel, and keep enjoying studies with me. Thank you.